بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير۔ عزیز ساتھیوں، انشاءاللہ آج ہم سورہ حدید کی اس آیت کا مطالعہ کریں گے، اس کی نحوی، صرفی اور اس آیت میں اللہ تعالی ہم سے کیا مطالبہ کر رہے ہیں، ان تمام چیزوں کو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اس عمل کو قبول فرمائے۔ سب سے پہلے اس کا لفظی ترجمہ دیکھیے، آمینو ایمان لاؤ، باللہ اللہ پر، ورسولہ اور اس کے رسول پر، وانفقوا مما اور خرچ کرو اس میں سے جو جعلکم اس نے بنایا تم کو مستخلفین پیچھے رہ جانے والے، خلیفہ جانشین، فیہ اس میں، فالذین آمنوا تو وہ لوگ جو ایمان لائے، منکم تم میں سے، وانفقوا اور انہوں نے خرچ کیا، لہم اجر ان کے لیے اجر ہے، کبیر بڑا۔ اب مکمل ترجمہ ملاحظہ فرمائیے، اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ اور اس مال میں سے خرچ کرو جس میں اللہ نے تمہیں جانشین بنایا ہے، پس تم میں سے جو ایمان لائے اور خیرات کرے انہیں بہت بڑا ثواب ملے گا۔ آئیے سب سے پہلے ہم اس کی ترکیب دیکھتے ہیں۔ آمینو فعل امر ہے باب افعال سے، باللہ جار اور مجرور، واو عاطفہ ہے، اور وانفقوا یہ بھی فعل امر ہے۔ اسی طرح مما جار مجرور ہے، جعلکم میں کم مفعول اول ہے، مستخلفینہ یہ مفعول دوم ہے، اور جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ واو عاطفہ ہے، اور فیہ یہ بھی جار مجرور ہے، آمنو فعل ماضی ہے جار مجرور، انفقو فعل ماضی ہے، پھر لہم جار اور مجرور، اجر کبیر موصوف اور صفت ہے۔ یہاں پر دیکھیے مما دراصل من پلس ما، اس میں من بیانیہ ہے اور ما موصولہ ہے، مما اس میں سے جو، اور فالذین میں فا استئناف کے لیے آیا ہے، استئناف۔ اور جیسے کہ ہم آپ کو بارہا بتا چکے ہیں کہ واو کے بعد جو ہوتا ہے وہ معطوف کہلاتا ہے، اور واو سے پہلے جو ہوتا ہے وہ معطوف علیہ۔ معطوف علیہ کو کبھی کبھی آپ کو آیت میں پیچھے بھی تلاش کرنا پڑتا ہے، معطوف آسانی سے رہتا ہے، مل جاتا ہے آپ کو آیت میں، معطوف علیہ کے لیے آپ کو کبھی کبھی کوشش اور محنت کرنی پڑتی ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ، یہ واو بھی عاطفہ ہے، تو اس کا معطوف اور معطوف علیہ کہاں ہے، اسی کے بارے میں ہم آپ کو یہاں بتا رہے ہیں۔ وَأَنفَقُوا عطف علی آمنوا داخل فی حیز الصلہ، یہ پچھلے والے جملے پر اس کا عطف ہے، یہ پورا جملہ معطوف ہے، وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ، اور اس سے پہلے جو جملہ ہے آمنو سے، وہاں پر اس کا معطوف ہے، فالذین آمنوا یہ جو نظر آ رہا ہے یہاں پر اس کا عطف ہو رہا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے اس میں مزید چند چیزیں ہیں، یہ جو اسم الموصول ہے اس کا ہمیشہ ایک صلہ ہوتا ہے، صلۃ الموصول، یعنی الذین کے بعد یا الذی، اللذانی، الذین، اللتی، اللتانی، اللاتی، یا پھر ما موصولہ، اس کے بعد جو بھی آتا ہے اسے عربی زبان میں صلۃ الموصول کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، فا استناف کا ہے، یہ مبتدا ہے، اور یہ آپس میں پھر دونوں مبتدا اور خبر ہے، اس میں خبر مقدم ہے، اور اجر کبیر موصوف اور صفت مل کر مبتدا مؤخر، تو یہ ایک جملہ ہے لہم اجر کبیر۔ اب یہ مکمل جملہ مل کر فالذین کی خبر بن رہی ہے، فالذین کی خبر، پھر آمنو منکم وانفقوا اس کے بارے میں کیا ہے، تو یہ صلہ ہے، صلۃ الموصول ہے، یعنی الذی کے بعد جو بھی آتا ہے اسے صلہ کہتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ لا محل لہ من الاعراب، بحیثیت جملے کے اس کا کوئی اعراب نہیں ہوتا ہے، کس کا، الذی کے بعد جو بھی آتا ہے۔ آئیے اب ہم اس کا اعراب دیکھتے ہیں الگ سے۔ آمینو تو مبنی ہے، یہ مجرور ہے، یہ بھی مجرور ہے، انفقو فعل امر ہے، مبنی ہے، مما من حرف جار ہے اسی لیے ما مجرور ہے، جعلکم کم مفعول اول اس لیے نصب، یہ مفعول دوم اسی لیے بھی نصب، یہ حالت رفع میں کیونکہ مبتدا ہے،
आमनु अनफकु दोनों माजी है, लिहाजा मबनी है। मिनकुम में कुम ज़मीर मुत्तसिल मजरूर है, उसके बाद अजरुन कबीर, ये दोनों मौसूफ और सिफत है। लफ्ज़ी एतबार से दोनों भी हालत रफ़ा में है, और लहुम खबर होने की वजह से वो भी महल्लन मरफू है। तो यहाँ पर देखिए बिल्लाही को जर दिया गया है क्योंकि इससे पहले हरफ जर बा आया है। रसूली ही पर जर क्यों आया? यहाँ पर आप बई की वजह से जर इस तरह नहीं कहेंगे, बल्कि कहेंगे कि मातूफ है किस पर? अल्लाह पर। मातूफ अलैह है, वो मातूफ अलैह को जर दिया गया, इसीलिए इसको भी जर दिया गया। उसके बाद मुस्तखलफीना मफूल बिही है दुवम, इसीलिए इसको नसब दिया गया या के ज़रिए से। जमा मुज़क्कर सालिम है। लहुम खबर मुक़द्दम है, महल्लन ये मरफू है। अजरुन मुब्तदा मुअख्खर महल्लन मरफू है, और कबीर सिफत होने की वजह से इस पर रफ़ा दिया गया। चलिए इसके बाद हम इसमें इस्तेमाल करदा अब्वाब देखते हैं। आमिनू सुलासी मजीद फी बाब इफ़ाल से, अनफिकू ये भी बाब इफ़ाल से, ये सुलासी मुजर्रद बाब फ़तह से, मुस्तखलफीना ये बाब इस्तिफ़ाल से। असली हुरूफ मुलाहज़ा फरमाइए। आमिनू हमज़ा मीम नून महमूज है, लफ्ज़ अल्लाह का रूट वर्ड हमज़ा लाम हा महमूज, ये सही सही, खलफा ये भी सही सही, और ये महमूज। उसके बाद देखिए इस आयत में जो अल्लाह ताला ने हमको बात बताई है, ये आयत दरअसल 6 आयतों के बाद आ रही है। सूरह हदीद एक मदनी सूरत है, इसमें उलमा का इख्तलाफ है। बाज़ लोग इसमें से चंद आयत मक्की मानते हैं और चंद आयतों को मदनी मानते हैं, लेकिन हमारा रुझान और उलमा के इस ख्याल के मुताबिक कि ये मुकम्मल सूरत मदनी है, उस चीज़ को पेश नज़र रखते हुए हम आपको उसका मतलब और मफहूम बता रहे हैं। तो देखिए कि इब्तिदा की जो आयत है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। इस आयत से पहले सूरे वाक़िया में जो आखिरी आयत है उसको आप गौर से देखिए। फसब्बिह बिस्मि रब्बिकल अज़ीम। अल्लाह ने ऊपर तस्बीह का हुक्म दिया कि तस्बीह बयान करो, तस्बीह बयान करो। तो जैसे ही तस्बीह का बयान हुक्म दिया, अल्लाह ताला ने अगली आयत में फ़ौरन उसी का जिक्र है कि अगर तुम तस्बीह बयान ना भी करोगे तो अल्लाह की शान में किसी किस्म की कोई कमी नहीं होगी। क्यों? सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द, जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है सब का सब अल्लाह की तस्बीह बयान कर रही है। तुम्हारे तस्बीह करने से और न करने से अल्लाह को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये जो शुरुआत की आयतें हैं जो आपके सामने स्क्रीन पर है, बज़ाहिर दिखने में ये मक्की नज़र आती है। इसमें अल्लाह ताला का तारुफ है, अल्लाह ताला का तारुफ है। पहली आयत में देखिए तस्बीह का जिक्र है कि आसमान और ज़मीन में जो कुछ है वो अल्लाह की तस्बीह बयान कर रही है। लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द, ये भी मुसलमानों को बताया जा रहा है, मदनी ज़िंदगी में बताया जा रहा है कि जो कुछ आसमान और ज़मीन में सब अल्लाह की मिल्कियत है। ये तो मुसलमान को पता है। युह्यी व युमीत, वही ज़िंदगी देता है, वही मौत देता है। वह हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर, वो हर चीज़ पर कादिर है। गोया ये बताना चाहते हैं अल्लाह ताला कि तुमको तुम्हारे दुश्मन से डर क्यों है, जबकि आसमान और ज़मीन में कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो अल्लाह की मिल्कियत के बाहर हो, अल्लाह की कुदरत के बाहर हो। सब की सब जो भी लड़ाई जंग झगड़ा हो रहा है वो सब अल्लाह की मिल्कियत में, अल्लाह के डोमेन में, अल्लाह की किंगडम में, अल्लाह की बादशाहत में हो रहा है। तो तुमको अपने दुश्मन से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सब के सब अल्लाह के हुक्म के मुंतज़िर है। जैसे ही कह देते हैं अल्लाह ताला कुन फ़यकून, जो अल्लाह कुन का जो है ना अल्लाह कह दे, तो हमारे लिए, मुसलमानों के लिए, मोमिनों के लिए बस इतना कहना ही काफ़ी है। अल्लाह ताला का इशारा ही हमारे लिए काफ़ी है। फिर उसके बाद अल्लाह ताला हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। फिर वह हुवल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द फ़ी सित्तति अय्याम सुम्मा इस्तवा अलल अर्श यअलमु मा यलिजु फ़िल अर्दि व मा यख़रुजु मिन्हा व मा यंज़िलु मिनस समाइ व मा यअरुजु फ़ीहा व हुवा मअकुम ऐनमा कुंतुम वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर। अब देखिए यहाँ पर पहली आयत में आसमान और ज़मीन का जिक्र है, फिर दूसरी आयत में मुल्कुस समावाति, फिर आसमान और ज़मीन का जिक्र है। फिर जो चौथी आयत है हुवल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द, इसमें भी आसमान और ज़मीन का जिक्र है। 3 मरतबा जिक्र आ गया। फिर अलग से यलिजु फिल अर्द में अर्ज़ का तस्किरा अलग से आया, फिर समा का तस्किरा अलग से आया, चौथी मरतबा यहाँ पर हो गया। फिर उसके बाद लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द,
लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द व इलल्लाहि तुरजउल उमूर। फिर 5वीं मरतबा अल्लाह ताला फिर से आसमान और ज़मीन का तज़किरा कर रहे हैं। व इलल्लाहि तुरजउल उमूर, तमाम उमूर उसी की तरफ लौटाए जाएंगे। यूलिजुल लैला फिन नहार व यूलिजुन नहार फिल लैल व हुवा अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। यहाँ तक अल्लाह ताला बार बार हमको आसमान और ज़मीन के बारे में बता रहे हैं कि वो हर चीज़ अल्लाह की तस्बीह बयान करती है। हर चीज़ जो कुछ आसमान और ज़मीन में अल्लाह की मिल्कियत में, अल्लाह की कुदरत में है। कोई चीज़ अल्लाह की कुदरत से, अल्लाह की मिल्कियत से बाहर नहीं है। तो मुसलमानों, तुमको अपने दुश्मन से डरने की क्या ज़रूरत है? इन चीज़ों को, इन आयतों को, शुरू की जो 6 आयत है, ये दिखने में हूँ बहू मक्की नज़र आती हैं, क्योंकि इसमें अल्लाह ताला का तारुफ किया गया। अब देखिए, आसमान और ज़मीन का जिक्र आने के बाद, अल्लाह की तस्बीह का जिक्र आने के बाद, और आमाल का अल्लाह की तरफ ऊपर जाना, और जो कुछ आसमान से नाजिल होता है, इन तमाम चीज़ों का जिक्र करने के बाद अल्लाह ताला अब हमसे और आपसे मुतालबा कर रहे हैं। वो क्या है? आमिनू बिल्लाहि व रसूली, ईमान ले आओ अल्लाह पर और उसके रसूल पर। तो सवाल यहाँ पर यह है कि हम तो पहले से ही मोमिन हैं। ये सूरत मदनी सूरत है और ये आयत मदनी आयत है, आमिनू बिल्लाहि व रसूली। भला मोमिनीन जो पहले से ईमान वाले हैं, मुसलमान हैं, उनको फिर से ये कहना कि ईमान ले आओ, इसका क्या मतलब है? इससे मतलब ये है कि हम हमारे ईमान की तजदीद करें, अल्लाह पर जैसे हमको यकीन होना चाहिए वैसे यकीन रखें, अल्लाह पर जैसे हमारा तवक्कुल होना चाहिए उस तरह अल्लाह की ज़ात पर मुसलमानों को, मोमिनों को भरोसा और तवक्कुल करना चाहिए। ये अल्लाह ताला हमको यहाँ पर बता रहे हैं। इसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं, व अनफिकू मिम्मा जअलकुम मुस्तखलफीन फीह, और खर्च करो, मिम्मा, उसमें से, जो, जअलकुम, तुमको बनाया, मुस्तखलफीन, जानशी बनाया। एक किससे बना? खा लाम फा, इस्तखलफा यस्तखलिफु बाबे इस्तिफआल से इसमें मफूल है, इसमें मफूल है। तुमको जानशी बनाया, यानी तुमको अल्लाह ताला ने जो कुछ दिया है ये सिर्फ चंद रोज़ा है, चंद दिनों के लिए। वक्तिया तौर पर अल्लाह ताला ने तुमको सलाहियत, माल, दौलत, अक़ल, बेटे, औलाद, तुम्हारी नस्ल, ताकत, क़ुव्वत, इक़्तिदार, ये तमाम चीज़ें तुमको अल्लाह ताला ने चंद रोज़ के लिए दिया है, चंद दिनों के लिए दिया है, चंद साल के लिए दिया है। और ये वक्त जैसे जैसे तुम गुजारोगे ये गुजरता जाएगा। ये घड़ियाँ जो तुमको अल्लाह ताला ने अता की हैं ये बहुत जल्द ख़त्म हो जाने वाली है। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुमको हमने जो कुछ दिया है इसमें तुम्हारी ज़ाती मिल्कियत ये नहीं है। तुम ये ना समझ बैठना कि तुम इस खुद जो है ना इसके मालिक हो, खुद मुख्तार हो। तुम खुद मुख्तार नहीं हो, अल्लाह ने चंद रोज़ के लिए तुमको दिया है, चंद रोज़ के लिए तुमको अल्लाह ताला ने दिया है। तो समझदार इंसान वो है कि उसकी मौत के आने से पहले पहले इन तमाम सलाहियतों को अल्लाह के रास्ते में खर्च करे, अल्लाह के रास्ते में खर्च करे और अल्लाह से दुआ मांगे कि अल्लाह ताला उसके इस अमल को कबूल फरमाए। देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो आपको ज़िंदगी मिली है ये बहुत मुख्तसर है। इस हदीस में आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमारु उम्मती मा बैन सित्तीना इला सब्ईन, मेरी उम्मत की उम्र 60 से 70 के दरमियान है। व अक़ल्लुहुम मन यजूज़ु ज़ालिक, और इनमें से बहुत कम होंगे जो इससे तजावुज़ करेंगे, यानी 60 से, यानी 70 से तजावुज़ करने वाले बहुत कम होंगे। आमारु उम्मती मा बैन सित्तीना इला सब्ईन व अक़ल्लुहुम मन यजूज़ु ज़ालिक, बहुत कम होंगे जो 70 को पार करेंगे। आप देख लीजिए हमारे रिश्तेदारों में, हमारे अहबाब में कितने लोग हैं जो 70 को पार करते हैं। अल्लाह ताला ने हमको बहुत मुख्तसर सी ज़िंदगी दी है और इस मुख्तसर सी ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने हमसे जो मुतालबा किया है कि जो कुछ सलाहियतें तुमको दी है ये तुम्हारी ज़ाती नहीं है, ये अल्लाह ही की है। तुमसे छीन जाने से पहले पहले इन सलाहियतों को अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। अपनी तवानाई, कोशिश, मेहनत, जहानत, माल, दौलत, औलाद, ये कुछ तुमको मरने के बाद काम नहीं आएगी। अगर तुम्हारी ज़िंदगी में तुम खर्च करोगे माल तो इसका सवाब तुमको मिलेगा, लेकिन तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारा माल अब वो तुम्हारा नहीं रहा।
اب تم اس میں سے خرچ بھی نہیں کر سکتے، تو جب تک تمہاری سانس چل رہی ہے، جب تک تمہارے لیے موقع ہے کہ تم اس سے اپنے رب کی رضا کو حاصل کرو۔ دیکھیے ایک اور حدیث آپ کے سامنے ہے، یقول العبد قول العبدی مالی مالی، بندہ کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال، انما لہو من مالہ ثلاث، اس کے لیے صرف